Hello everyone, today we will be studying the assumptions that are used in strength of material. Uh, when we are dealing with the strength of material, we need to understand that there are certain assumptions that we are following. We have to assume that if you are doing certain analysis on the material, so you should follow these assumptions. So first assumption says that the component is homogeneous and isotropic. So the component you are dealing with, you have to assume that it is homogeneous and isotropic. So what do you mean by homogeneous? Homogeneous is that material, you can say homogeneous material when it is having the same elastic property, e.g. K mu. What is e.g. K mu? We have discussed all these elastic properties. What is Young's modulus of elasticity, then shear modulus of elasticity, then bulk modulus of elasticity, and then Poisson's ratio. So, at any point in the given direction, when you are talking about the homogeneous material, it is a material. It is called the homogeneous when it is having the same elastic property, that is E, either it is E or G, K or mu at any point in a given direction. If you are dealing with, this is the diagram of a homogeneous material. When you are dealing with a homogeneous material, that's it, at any specific point, suppose this is any point in a given direction. So suppose you are talking about this direction, the elastic property is same. Look, anywhere, if I am taking a point here in this direction, the property will remain same, that is even in this direction, even in this direction, and one in this direction. The if in this above direction it is E2, then always at any other point also the upward direction property will be E2. Similarly, and this is the case when we are talking about, the examples are wood, iron, aluminium, steel. These are the examples of a homogeneous material. Now comes the third assumption, that is a material is called isotropic. आइसोट्रॉपिक मटेरियल कौन सा होता है? अब आइसोट्रॉपिक मटेरियल उस मटेरियल को बोलते हैं जब हमारा सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी किसी डायरेक्शन में, इन एनी डायरेक्शन, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। देखिए अब यहाँ पे डायग्राम से समझेंगे। देखिए एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ये एक पॉइंट है, इसके किसी भी डायरेक्शन में आप देखेंगे, देखिए G2 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 G2। So at any specific point, the elastic property in any direction at a given point should be same. So देखिए यहाँ पे एक और स्पेसिफिक पॉइंट है, इस पॉइंट पे G1 है, तो हर डायरेक्शन में इसी पॉइंट पे क्या होगी, G1 होगी। जैसे यहाँ पे G3 है, वैसे हर डायरेक्शन में क्या होगी, G3। So these are, if you are talking about the homogeneous material, at any specific point in a given direction the property should be same, and when you are talking about the isotropic material, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम। तो एग्जांपल्स आर ग्लास, ब्रास, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड स्टील। सो अगर इसका कॉम्बिनेशन बनाया जाए, दैट इज होमोजीनियस प्लस आइसोट्रॉपिक, तो क्या होगा, हर डायरेक्शन में क्या होगा, होमोजीनियस क्या कहता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में सेम है, तो अगर वो होमोजीनियस भी होगा और आइसोट्रॉपिक भी होगा, मतलब किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर यहाँ के है तो हर डायरेक्शन में क्या होगा, के। तो हमको मानना है कि दैट द मटीरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, दैट मीन H प्लस I का कॉम्बिनेशन। तो कैसा होगा वो, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हर डायरेक्शन में क्या होगी, प्रॉपर्टी सेम होगी। So this is the assumption used in strength of materials. The other point says that if you are conducting a test on an average level, most metals show homogeneous and isotropic properties. So जब हम कोई भी specific टेस्ट करते हैं किसी भी मटेरियल पे, एवरेज लेवल पे जब हम मानते हैं कि हर मेटल यही प्रॉपर्टी शो करता है, दैट इट इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। अदर पॉइंट इज इफ टेस्ट इज कंडक्टेड एट अ माइक्रो लेवल, जब माइक्रो लेवल की स्टडी होगी, अब बहुत डीप हम जा रहे हैं, देखिए माइक्रो लेवल स्टडी एटॉमिक लेवल पे, अब मटेरियल्स आर नाइदर होमोजीनियस नॉर आइसोट्रोपिक, तो मटेरियल ना तो होमोजीनियस होता है ना तो आइसोट्रोपिक। तो जब हम एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं तो मटेरियल इज नाइदर होमोजीनियस नॉर आइसोट्रोपिक। अदर पॉइंट इज ऑल मेंबर्स वेट लेस,
जो भी मेंबर से हम डील कर रहे हैं उसको हम वेटलेस मान के चलेंगे. दैट मीन्स द इफेक्ट ऑफ द बॉडी फोर्सेज इज नेग्लेक्टेड एंड एनालिसिस इज कैरिड आउट बाय द सरफेस फोर्सेज ओनली. तो अगर ये एक बार है, इसमें टेंसाइल लोडिंग है देखिए P, तो इसी से हमें डील करना. हम ये नहीं मानेंगे कि इसका वेट क्या है और दैट इज mg, इसको नेग्लेक्ट कर रखा है. वेटलेस हम मानते हैं कि मेंबर इज वेटलेस. वी ओनली डील विद द सरफेस फोर्सेस. सो ये क्या है, एक अजम्पशन है इसका, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं. ठीक है, अब आपको भी मालूम है कि वेट को हम कंसिडर करना पड़ेगा अगर हम एक्चुअल एनालिसिस में जाएंगे. तो क्या होता है, अदर पॉइंट इज हुक्स लॉ इज वैलिड, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो हम मानते हैं कि हुक्स लॉ वैलिड है, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट मीन्स सिग्मा इज इक्वल टू ई into strain, that is elasticity, Young's modulus of elasticity. Other point is superposition theorem is valid. Superposition theorem क्या होगा, that is the algebraic sum for all the small deformation should be algebraic sum. Superposition theorem is valid. तो ये वैलिड होगा कि जो क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि एल्जेब्रिक सम लेना हमें. अगर हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, दैट शुड बी द एल्जेब्रिक सम फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन एंड इफ हुक लॉ इज वैलिड. तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हुक्स लॉ वैलिड होना चाहिए. तो अगर ये क्वेश्चन देखिए, हम यहाँ पे ये क्वेश्चन हम करते हैं, यहाँ पे गिवन है ये क्वेश्चन कि ये एक मटेरियल है, वो यहाँ पे जाके कोई मटेरियल यहाँ पे है P जिसकी एनालिसिस हम कर रहे हैं, वहाँ पे एक स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस है 10 मेगापास्कल, कंप्रेसिव है 5 मेगापास्कल. तो टोटल क्या होगा, सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है वैलिड, एल्जेब्रिक सम लेना है. तो एल्जेब्रिक सम लेने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेस टोटल कितना होगा इसमें, टेंशन प्लस सिग्मा कंप्रेशन, तो टोटल स्ट्रेस ये हो गया. कंप्रेशन अगर टेंशन पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो दैट मीन 10 माइनस 5 इज 5 मेगा पास, ये आ गया. पर क्या ये एक्चुअल में सही है, नहीं, ये एक्चुअल में सही नहीं है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हियर. तो अब मैंने जब आपको माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड होता है. हम मानते हैं कि बी पॉइंट तक हुक्स लॉ वैलिड रहता है, तो वहां तक स्ट्रेट लाइन रहती है ये, पर ये मटेरियल तो उससे भी बाहर है, तो हुक्स लॉ वैलिड ही नहीं है. तो अगर हुक्स लॉ वैलिड ही नहीं है तो ये एनालिसिस क्या होगी, हमारी गलत होगी. तो हमारा इसमें नोट करके लिख लीजिए आप, दैट फॉल्स, दिस इज द फॉल्स एनालिसिस बिकॉज हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर पी. जब भी मटेरियल हुक्स लॉ से बाहर हम एनालाइज करेंगे, उसको हम इस स्टडी में नहीं लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बिकॉज हम ओनली वहां तक डील करते हैं इलास्टिक लिमिट पॉइंट तक, बिकॉज जहाँ तक क्या रहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो इसलिए ये क्या है, वैलिड नहीं है, बिकॉज हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड एट पी. तो ये आपका स्टेटमेंट हो सकता है. ओके, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ ट्रू स्ट्रेसेज एंड ट्रू स्ट्रेन इज नेग्लेक्टेड. अब ये ट्रू स्ट्रेसेज एंड ट्रू स्ट्रेन होता क्या है एक्चुअल में, देखिए क्या है, ये एक बार है. अब इस बार को हम टेंसाइल लोडिंग दिया, दैट इज, अब इसका देखिए यहाँ पे एरिया है ए नॉट. अब इसको हमने, और इसकी लेंथ है एल नॉट, इसको हमने खींचना स्टार्ट किया. अब क्या होगा, इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, दैट इज एल नॉट से प्लस डेल एल, थोड़ा चेंज होगा लेंथ में, लेंथ क्या होगी इसकी, इंक्रीज हो जाएगी. तो कितनी इंक्रीज हुई, डेल एल मान लिया. बट देखिए इसका इस फेस पे देखिए, अगर जो इस फेस का एरिया ए नॉट था, तो वो क्या होगा, या अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो ये क्या होगा, एरिया कम होगा. तो कितना एरिया कम हुआ, दैट इज ए नॉट माइनस डेल ए नॉट. तो एक्चुअल में हुआ क्या, हमारा इधर का एरिया कम हुआ, इधर की लेंथ इंक्रीज हुई. ठीक है, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस में हम क्या कहते हैं, दैट स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया. एरिया हम क्या ले रहे हैं, इनिशियल एरिया. इनिशियल एरिया ही तो हम इंक्लूड करते हैं, दैट इज इन कांटेक्ट. बट एक्चुअल में होता क्या है, ट्रू स्ट्रेसेस को बोलते हैं कि फोर्स अपॉन द एरिया इंस्टेंटेनियस. उस पॉइंट पे, उस टाइम पे जब हमने उसको खींच दिया मटेरियल को, तब उसका एरिया कितना था, तब एरिया तो उसका डिक्रीज हो गया था. अगर उसका एरिया ये डिक्रीज हो गया था, तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो ट्रू स्ट्रेसेस क्या होंगे, ग्रेटर देन इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस. तो एक्चुअल में जो हम एनालिसिस करते हैं वो हम इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस पे करते हैं, बट ट्रू स्ट्रेसेस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं.
तो अब आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। जैसे ये एक बार था, इसको हम खींचेंगे, अब वायर देखिए, वायर को खींचेंगे तो क्या होगा, उसकी लेंथ तो इंक्रीज हो जाएगी, पर इधर का क्रॉस सेक्शनल जो एरिया होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब जो वो डिक्रीज हो जाएगा वो तो एक्चुअल एरिया है ना हमारा, तो वो एक्चुअल एरिया को हम कंसिडर नहीं करते हैं। हम इनिशियली जैसे ही हमको ये वायर दिया तो हम उसके एरिया को उस फॉर्मूले में पुट करते हैं, दैट इज इन कॉन्टैक्ट, तो दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। बट हमें एक्चुअल में अगर हम ट्रू स्ट्रेसेस निकालेंगे तो क्या होगा, इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे कितना स्ट्रेस है हमारा, तो उसके लिए हमारा एरिया का क्या हो रखा है, डिक्रीज हो जाएगा। अगर हमने टेंसाइल लोड लगाया तो हमारा ट्रू स्ट्रेसेस ज़्यादा आएंगे एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस। अब सेम चीज़ अगर हम कंप्रेशन में करते हैं, देखिए तो कंप्रेशन में क्या होगा, अगर ये हमने एक बार लिया, ठीक है, इस बार को हम कंप्रेसिव लोड लगाएंगे, कंप्रेसिव लोड दैट इज पी इन बोथ द डायरेक्शन। अब इसकी लेंथ अगर एल नॉट है और यहाँ पे एरिया ए नॉट है, तो अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, जैसे हमने इसको कंप्रेसिव लोड लगाया है, सो दिस लेंथ विल डिक्रीज बाय एल नॉट माइनस डेल एल, तो कितना डिक्रीज हुआ, माइनस डेल एल, बट दिस एरिया विल इंक्रीज बाय हाउ मच, ये एरिया इंक्रीज हो जाएगा दैट ए नॉट प्लस डेल ए, कितने से इंक्रीज हुआ, डेल ए से। सो ये एरिया अब इंक्रीज हो गया और ये डिक्रीज हो गया लेंथ। तो हमारा जो इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस था, इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस इन कंप्रेशन की बात करें तो लोड अपॉन एरिया, इनिशियल एरिया कितना था, ए नॉट, ठीक है। अब जो ट्रू स्ट्रेसेस थे, ट्रू स्ट्रेसेस में क्या होगा, ए लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ए प्लस डेल ए। अब ये टोटल इंक्रीज हो गया तो ट्रू स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इन सिग्मा इंजीनियरिंग आर ग्रेटर देन सिग्मा ट्रू स्ट्रेसेस, या सिग्मा ट्रू इज लेस देन सिग्मा इंजीनियरिंग। तो कंप्रेशन के केस में हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस ज़्यादा होते हैं और टेंशन में कम होते हैं। तो आप आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ट्रू स्ट्रेसेस क्या होते हैं और हमारे इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस क्या होते हैं। सो आई होप ये अजम्पशन समझ में आ गया हो कि इफेक्ट ऑफ द ट्रू स्ट्रेसेस एंड ट्रू स्ट्रेन इज नेगलेक्ट, जो एक्चुअल में होता है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, हम इनिशियली जो है हमारा ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि वो एरिया कांस्टेंट, ठीक है। अब हम अदर मटेरियल्स को देख लेते हैं। अब देखिए वर्ड आता है ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल कौन सा होता है, ऑर्थो मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब जब इस टाइप के मटेरियल की बात आती है तो वो ऐसा मटेरियल होता है कि जिसकी किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे हम बात करें तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे ऑपोजिट क्या रहेगी, इलास्टिक प्रॉपर्टी रहेगी। अगर देखिए ये एक पॉइंट है, इस डायरेक्शन में बात करेंगे तो अगर इस डायरेक्शन में E1 है तो इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अदर प्रॉपर्टी होगी, कुछ अलग प्रॉपर्टी होगी, दैट इज E2। जैसे कि हम यहाँ लिखा है, इन ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी एट एनी पॉइंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। डिफरेंट प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी इन ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। एग्जाम्पल मटेरियल्स विद लेयर्स लाइक ग्रेफाइट एंड प्लाईवुड, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। तब आते हैं एनिसोट्रॉपिक मटेरियल, दैट इज रिवर्स ऑफ आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक क्या कहता था, आइसोट्रॉपिक कहता था किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। सो एनिसोट्रॉपिक मटेरियल वो मटेरियल होगा जिसके एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हर डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। तो देखिए स्पेसिफिक पॉइंट है, इसके हर डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी है, दैट इज K1 इन दिस डायरेक्शन, K2, K3, K4 एंड K5। तो इस तरह से एनिसोट्रॉपिक मटेरियल को डिफाइन करेंगे, दैट इन एनिसोट्रॉपिक मटेरियल हैविंग different elastic property in different direction at a given point. So examples are material with cracks and voids will behave as a anisotropic material. तो जिस मटेरियल्स में क्रैक और वॉइड्स आ जाते हैं उस टाइप के मटेरियल को हम कहते हैं एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। सो एनिसोट्रॉपिक मटेरियल को अगर आपको डिफाइन करना हो सो यू कैन आल्सो से इट इज द रिवर्स फिनोमेना ऑफ आइसोट्रॉपिक मटेरियल, जिसमें किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो आप लोगों को कि होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है
आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है, अनिसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है, what are true stresses, what are engineering stresses, and we have learned about all the assumptions that we need to follow in the strength of materials. So that's it for today, so thank you very much.